Good morning, dear students. How are you all? Welcome to our English class. Do you remember what we learnt yesterday, students? We started with the poem The Wonderful Words written by Mary O'Neill. She is an Irish poetess and she has written various poems and plays and drama. The Wonderful Words is one of her poems. Today we will revise what we learnt yesterday in the first stanza and then we will move ahead with the second stanza. Okay? So yesterday we learnt about the first stanza. The lines are: never let a thought shrivel and die for want of a way to say. For English is a wonderful game and all of you can play it. So, what is said over here? That we should never let a thought die in our own mind. Why? Because every thought is very precious and very important and very special. ठीक है? तो हमें कभी भी अपने थॉट्स को अंदर ही अंदर रखना नहीं चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए. तो बाहर कैसे निकालोगे? You'll use your words, you'll use your power of words to bring your thought in front of everyone. और ये सबका राइट भी है, सबका हक भी है, राइट? और क्या बोल रहे हैं पोएट्स की इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. ऐसा बोल रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटीफुल है. नॉट ओनली इंग्लिश, एवरी लैंग्वेज इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे. हर लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही सुंदर, स्पेशल और अच्छी होती है. फाइन. तो इंग्लिश भी एक ऐसी ही लैंग्वेज है जिसमें हम सीख लें तो हम उसके साथ खेल सकते हैं. वी कैन प्ले वेरियस गेम्स बाय लर्निंग English. We can express our thoughts and play the game of expressing thoughts, right? All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. तो क्या करना है हमको? हमें सिर्फ अपने thoughts को अच्छे वाले word के साथ match करना है. और जैसे ही हम मैच करेंगे we can express our thought in the form of words so that they can come out clear and true and handsomely groomed and fed. तो क्या होगा? वंस वी यूज़ अवर वर्ड्स वेरी प्रॉपरली इन अ प्रॉपर मैनर देन आवर थॉट्स विल बी हैंडसमली ग्रूम्ड. हमारे जो थॉट्स होंगे ना वो अच्छे से निखर के बाहर आएंगे और सामने वाले को वो अच्छे लगेंगे, क्लियर लगेंगे और ट्रू लगेंगे, कभी भी गलत नहीं लगेंगे. फाइन. So we should use our words very 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 carefully and our words must never harm anyone. हमारे words की वजह से किसी को भी कोई भी परेशानी होनी चाहिए नहीं. Okay? Fine. And the last two lines are: For many of the loveliest things have never yet been said. तो ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें हैं जो आज तक किसी ने कही नहीं. क्यों? क्योंकि कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं थे, इसीलिए हम वो अच्छी बातें सुन नहीं सके, हम अच्छी बातें जान नहीं सके. बिकॉज पीपल केप्ट देयर थॉट्स इन द माइंड इटसेल्फ. अपने माइंड के अंदर ही थॉट रखा, उसको बाहर कभी निकाला ही नहीं. ओके, दैट वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा. नाउ वी विल मूव अहेड टू द सेकेंड स्टैंजा. आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. So, what does the poetess wants to say? She wants to say that words are the food and dress of thoughts. हमारे जो वर्ड्स है ना वो खाने का काम करते हैं. किसका खाना है? वर्ड्स आर द फूड ऑफ थॉट्स. अपने जो थॉट्स है ना, जो हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, तो वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स एंड दे गिव इट्स बॉडी अ स्विंग. तो जो थॉट है ना उसको बॉडी और मूवमेंट कैसे मिलता है? तो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स हैं जो थॉट्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, ड्रेस की तरह एक्ट करते हैं और उस बॉडी और मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो जो हमारे थॉट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो कैसे आते हैं? ऐसे ही तो नहीं ना मेरा थॉट आपके पास आ जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. देन व्हाट इट इज़? इट इज़ लाइक words are there to express the thoughts.
So we should always use our words very, very, very carefully. Then what does the poetess says in the next line? She says, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. तो आज कल परसों सबको वेट होता ही है कि कोई अच्छी खबर आए, कुछ अच्छा सुनने को मिले, कुछ फ्रेश और ब्यूटीफुल थिंग हमको सुनने को मिले, राइट? तो एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. तो ये जो फ्रेज है बिहाइंड योर आइज, उसका मतलब है आंखों के पीछे हमारा जो हेड है, हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स है और वो जेल है. किसका जेल है? कौन है जेल में? थॉट्स है जेल में, बराबर. किसी को भी जेल में रहने का अच्छा नहीं लगता, बराबर. सिमिलरली आवर थॉट्स ऑल्सो दे नेवर वॉन्ट टू बी इन प्रिजन. सो वॉट आर द वर्ड्स डूइंग? वर्ड्स आर मेकिंग थॉट्स फ्री फ्रॉम द प्रिजन. मतलब प्रिजन जो है, जो जेल है, माइंड की जो जेल है, उसमें से सारे थॉट्स को आज़ाद करने में कौन हेल्प करता है? वर्ड्स हेल्प करते हैं. वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज. ओके, सो थॉट्स आर इन द प्रिजन एंड हु इज हेल्पिंग आउट टू बिकम फ्री? हु इज हेल्पिंग द थॉट्स टू बी फ्री? Our words are helping. So words are very powerful and we should use them properly. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. तो जब हम ये पोएम पढ़ रहे तभी भी आपके माइंड में कोई अच्छा वाला मस्त वाला थॉट आ रहा होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन बी ब्रॉट आउट विथ वर्ड्स. तो जब भी हम वर्ड्स यूज़ करें तो हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी हर्ट ना हो. वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, सो वी शुड यूज़ देम वेरी वाइजली. Now let us read out the summary of the poem and then we will look a short video in which the poem is been sung. Okay, उसके बाद में मैं आपको मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स जो है वो बता दूंगी, जो आपको पोएम लिखने के बाद में कॉपी करना है. तो पहले आप क्या करोगे? पोएम लिखोगे, पोएम के बाद में हार्ड वर्ड्स लिखोगे, हार्ड वर्ड्स के बाद में मीनिंग्स लिखोगे, बराबर. दैट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. नाउ लेट अस रीड आउट द समरी. Every mind has thoughts. People are constantly trying to translate their thoughts into words. The poet wants these attempts to continue. No thought should die for want of proper words. English is a wonderful language, and trying to find suitable words for your thoughts is a wonderful game. So, English is a very beautiful language and we can play a wonderful game of finding words for our thoughts. So that is all about the first stanza. जो पोएट्स समझाना चाहती है कि लोगों के दिमाग में कंटिन्यूसली कोई ना कोई नया थॉट आता रहता है और लोगों को उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको दबा के रखना चाहिए नहीं. और इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सभी लैंग्वेजेस अच्छी होती, कोई लैंग्वेज बुरी नहीं होती, राइट. सो ऑल द लैंग्वेजेस आर ब्यूटिफुल and we can express our thoughts in beautiful words in a decorative manner. New thoughts are always coming. Many beautiful thoughts have not yet found expression. Let everyone try to give its thoughts a body of proper words. Words are the food and dress of thoughts. They supply the thought its body and energy. तो हमारे जो नए नए थॉट्स आते हैं वो सब आने देने के, और सभी ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन उनको अभी तक एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिले. इसीलिए हमें क्या करना है? वी शुड एक्सप्रेस अवर थॉट्स इन प्रॉपर वे, इन सच अ वे इट डज नॉट हर्ट एनीवन. किसी को भी चोट ना पहुँचे उस तरीके से हमें हमारे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स. तो जो वर्ड्स है वो फूड और ड्रेस है थॉट्स का. दे सप्लाई द थॉट इट्स बॉडी एंड एनर्जी. तो हमारे थॉट्स को बॉडी और एनर्जी वर्ड्स ही प्रोवाइड करते हैं. सो वर्ड्स आर वेरी 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 पावरफुल. सो वी शुड ऑलवेज यूज देम वाइजली. Everyone wants to hear something new and beautiful. The thoughts are imprisoned in our mind. We can liberate them only with the help of suitable words. Who knows, there may be some splendid and original thought of your mind waiting for proper words. तो
हमारे माइंड में बहुत सारे अच्छे थॉट्स होते हैं जिन्हें अंदर जेल में रहना, माइंड की जेल में रहना अच्छा लगता नहीं है। तो उन्हें आज़ाद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे वाले वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो कि हमें हेल्प करें हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल हैव अ म्यूजिकल वीडियो ऑफ द पोएम। आप लोग वो वीडियो देखो और अच्छे से सुनो। आफ्टर दैट वी विल move to the dictation word path. Okay, never let a thought shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. Hope students you understood the poem. Now you'll take your pen or pencil and write these meanings in your textbook. Longing, that means desiring. Marvelous, that means wonderful. Swing, swing means to move. So copy these meanings. हाउ यूल राइट इन योर नोटबुक? नोटबुक में कैसे लिखोगे? सबसे पहले पोएम कॉपी करोगे, हेडिंग डाल के पोएट का नेम लिख के, उसके बाद में आप लोग पोएम लिखने के बाद में हार्ड वर्ड्स लिखोगे और उसके बाद में मीनिंग्स लिखोगे। देखो ये वाले हार्ड वर्ड्स आपको लिखने हैं। आई एम रीडिंग आउट फॉर यू। द फर्स्ट वन इज ग्रूम्ड, सेकेंड वन इज प्रिजन, थर्ड वन इज मार्वलस, फोर्थ वन इज श्रिवल, and the fifth one is brightest. Fine. Okay students, ये आपका होमवर्क है। copy the poem, copy hard words, copy meanings in your notebook. That's all for today. This is your homework. Do complete it. और tomorrow is Friday, but I will be sending you a small video. वो वीडियो के अंदर मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स दूंगी जो आपको एग्जाम में आएंगे, टेस्ट में आएंगे, प्लस वैल्यू एजुकेशन का थोड़ा सा रिविजन दूंगी। फाइन, सो सी यू ऑल tomorrow.